Hi guys, fantastic. Today's been a fantastic day, and with forever, every day becomes fantastic. So let me first pin my video so I can get you more of myself coming on the screen. Hi guys, like to welcome you for this fantastic seminar forever. We have this very talented people coming for our meet today. Mr. Azad, his name is, I'll give you a full proper introduction of him. Sorry for the little bit confusion with the password and all. I think we're also learning and we keep on learning. So, and mistakes are good. If you do mistakes, that's how you learn. So first I'd like to make Mr. Azad the co-host. Okay, Azad Thakur, you are now the co-host also with us. So before that, let me introduce you properly with this fantastic group called Forever, and we are going to do wonders. Before you come on the screen, like to welcome all of you on a Sunday at 1 o'clock in the afternoon. You will come for this fantastic business. So let me introduce you, Mr. Azad, properly. Now, this guy is outstanding. Okay, most of the people in Forever who have joined are outstanding. I'll just tell you some brief about this guy. Basically, Mr. Azad was a shopkeeper, and I have met him many times in Chandigarh, and I've done a lot of seminars with him. So this guy is superb, and his lifestyle has changed. Now he's a soaring manager with the company. So imagine he's one of the top creams with the company. 4 times he's qualified for chairman bonus. In our Hindi words, we say Diwali bonus. But basically it's chairman bonus, but to make it easy to in India, we call it Diwali bonus. So he's already qualified 4 times. 4 times he's qualified for a car plan. So imagine the types of cars, benefits, and fantastic that you get with this company is outstanding. So 4 times he's already qualified for car. He's qualified for Eagle managers, managers retreats, and a lot of other things. So I don't want to take a lot of time. I want to give the full power to Mr. Azad. So Azad, can we welcome you, sir? Oh, sure. Thank you very much, Simon sir. Again, सभी को good morning. आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे याद किया, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं साइमन सर के बारे में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो उन दिनों हमें कुछ इंस्पिरेशन चाहिए होती थी। तो उन दिनों में एक मैगजीन आया करती थी द वीक के नाम से, और द वीक के फ्रंट पेज पे साइमन सर की जो फोटोग्राफ था उनकी अपनी गाड़ी के साथ, और मिस्टर प्रेमसन भी साथ में थे। तो इनकी उसमें सक्सेस स्टोरी आई थी फॉरएवर लिविंग के बिजनेस से रिलेटेड, और मुझे याद है कि मैंने उन दिनों लगभग 50 मैगजीन जो है बाय की थी। और वो मैगजीन जो है मुझे लोग परेशान हो गए थे शॉपकीपर कि यार इसको इतनी मैगजीन क्यों चाहिए। तो उन मैगजीन्स को लेके मैं अपनी पूरी टीम में मैंने उसको स्प्रेड किया। जो भी लोग मिलते थे मैं दिखाता था कि अगर साइमन सर जो है ये कर सकते हैं, इतना अच्छा अर्निंग इन्होंने उस समय पे किया था जो उस समय ड्रीम हुआ करता था लोगों का। आई थिंक 70 लाख रुपए शायद प्रेमसन सर का भी उसमें दिखाया हुआ था, और आपका तो खैर था ही लाइफस्टाइल सारा। सो दोस्तों, आपको आज मैं अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा और आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर करूंगा जिससे आप सभी को एक होप मिलेगी कि अगर मेरे जैसा एक शॉपकीपर इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है, यहाँ पे सक्सेस के झंडे गाड़ सकता है, तो आप मुझसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। सो आज मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सक्सेस स्टोरी और मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए और उनको मैंने कैसे ओवरकम किया, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूं, और हिमाचल शायद आप में से कुछ दोस्त आए भी होंगे। बहुत ही सुंदर जगह है हिमाचल, ब्यूटी है, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है इसे। तो बचपन में मैं चंडीगढ़ आ गया था। यहाँ पे हमारा बिल्कुल नियरेस्ट जो सिटी लगती है वो चंडीगढ़ है। तो जब चंडीगढ़ आया था तो यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग के साथ साथ फिर हम क्योंकि हमारी शॉप हुआ करती थी तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया और धीरे धीरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद मुझे वहां पे काफी सारा लॉसेस हुए हमें, फादर को उस बिजनेस में। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे 2 साल सड़क पे फड़ी लगानी पड़ी, यानी पीनट्स जो है वो सेल किए मैंने, मूंगफली बेचा सड़क पे बैठ के। यानी कहने का भाव ये है कि स्ट्रगल जो है वो शुरू से ही मुझे मिलनी शुरू हो गई। तो जब छोटा था तो ड्रीम बड़े होते थे। बगल में कोई गाड़ी निकला करती थी, उन दिनों गाड़ियां बहुत कम हुआ करती थी, कंटेसा गाड़ी चला करती थी।
तो जब वो मुझे दिखाई देती थी, बेच में मूंगफली रहा होता था फड़ी लगा के, लेकिन सपना ये होता था कि यार ऐसी गाड़ी जो है मेरे पास भी होनी चाहिए। और दोस्तों धीरे-धीरे मेहनत करते गए और फिर से मैंने अपने उस बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया। 1 शॉप, उससे बाद फिर दूसरी शॉप, फिर 3 शॉप। इस तरह से मैंने अपनी 3 शॉप जो है वो एस्टैब्लिश कर ली चंडीगढ़ सेक्टर 7 में। यानी लेके चलिए सन 2005 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं फॉरएवर में आया था, उस समय मेरा वो जो बिज़नेस था, वो बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो चुका था क्योंकि उसमें मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स ले ली थी। मेरे पास बिसलेरी मिनरल वाटर की डीलरशिप थी, शायद आपके वहाँ पे भी बिसलेरी मिलता है। और इसके साथ-साथ बॉर्न ब्रेड की मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, मिल्क का मैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर था। यानी मेरा बड़ा काम जो है वो सेटअप हो चुका था। और जैसे-जैसे मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने लगा ना, वहाँ पर मुझे कुछ इस तरह के चैलेंजेस आने लगे, जो कि आम आदमी की लाइफ में उसे परेशानी देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे-जैसे मैंने बिज़नेस को बढ़ाया, मुझे एक चीज़ का एहसास होने लगा कि मेरा नाम आज़ाद सिंह है, लेकिन मैं आज़ाद सिंह नहीं गुलाम सिंह बन चुका हूँ। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, हम 2 तरीके से पैसा बनाते हैं, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या फिर एम्प्लॉयी होंगे। यानी कि या तो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी डॉक्टर, प्लम्बर, एडवोकेट, सीए, मजदूर, ये वो लोग होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी खुद काम करते हैं और पैसा बनाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। तो ना तो मेरे पास कोई संडे होता था, ना कोई फेस्टिवल एन्जॉय करने का टाइम होता था। जब-जब फेस्टिवल्स आते थे तो हमारे क्राउड और ज़्यादा बढ़ जाया करता था। तो मैं इस चीज़ से बड़ा ही परेशान था कि यार मैं अब ऐसा क्या करूँ कि जिसकी वजह से मैं इस चीज़ में से निकल सकूँ, अपने आप को निकाल सकूँ और अपने नाम के अकॉर्डिंगली मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय कर सकूँ। तो दोस्तों मेरी लाइफ में सन 2005 में फॉरएवर लिविंग का एंट्री हुआ। लेकिन जब एंट्री हुआ तो इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिल जाती। कहते हैं जो आसानी से कामयाबी मिल जाती है वो कामयाबी होती भी नहीं है। तो आज मैं आपके साथ वही स्टोरी कि क्या कुछ मैंने यहाँ पे किया और किस तरह से कौन-कौन से अचीवमेंट्स मैंने आपके इसमें से अचीवमेंट की, वो मैं आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे नए साथी होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो मैनेजर बन चुके हैं, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो सोरिंग तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि सोरिंग मैनेजर हूँ तो सोरिंग मैनेजर तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो सुपरवाइजर हैं, जो अभी फँसे हुए हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसी बातचीत आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले। साइमन सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? आवाज़ भी प्रॉपर आ रही है? Yes, yes, perfect. ओके, ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी We मच। can see your screen sheets. We can see your screen. Everything is perfect. Go ओके, ahead. Thank you. ओके सर, ओके। थैंक यू वेरी मच। सो आज मैं आपके साथ अपनी जो जर्नी है विद फॉरएवर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों होता क्या है कि इस शेयरिंग से एक चीज का फायदा बहुत बड़ा मिलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो एक होप ढूंढ रहे होते हैं, जो एक आशा ढूंढ रहे होते हैं कि यार मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो शायद सबके साथ भी ऐसा हुआ है, या सब बातें ही होती हैं, है ना? तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो इससे पहले मैं सेल्फ एम्प्लॉय हुआ करता था। ये मेरी शॉप्स हैं चंडीगढ़ सेक्टर 7 में, प्रिंस कन्फेक्शंस के नाम से 1, 2, 3 3 दुकानें मेरी हुआ करती थी। और दोस्तों आप सुनकर हैरान होंगे कि मेरे पास इतना क्राउड होता था शॉप में, इतना रश होता था कि पूरे की पूरी जो मार्केट है वो एक साइड लगा लीजिए और मेरी तीनों दुकानों की सेल एक साइड। यानी कहने का भाव इतना क्राउड मेरे पास होता था कि अगर कोई पर्सन मेरे पास सामान लेने आ जाए तो उसको कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़े। मेरे पास बड़े यूनिक आइटम्स हुआ करते थे। मैंने वहां पर भी बिजनेस किया तो बड़ा टॉप का किया। और मैं जब फॉरएवर में आया हूं ना, तो मैं उस समय इसमें एंटर हुआ हूं दोस्तों, जब मेरा वो ड्रीम पूरा हो चुका था। मैं वहां से भी बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर रहा था, जो कि उन दिनों लोगों का ड्रीम होता है कि ऐसी इनकम, ऐसा बिजनेस, ऐसी शॉप मेरी हो तो मेरी जिंदगी बदल जाए। तो मैंने उस समय डिसीजन लिया फॉरएवर को करने का। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद जब हम बिल्कुल लोस पे होते हैं तब हम बिजनेस को करने का, स्टार्ट करने का सोचते हैं। नहीं दोस्तों, मैं आपसे एक चीज जरूर साथ साथ में शेयर करता चलूंगा। याद रखिएगा, हमें पानी उस समय जरूरत पड़ती है जब हमारे घर में होता है। यानी कहने का भाव कि अगर हमारे घर में पानी है तो उस समय हमें कुआं खोद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे घर में पानी नहीं होता है उस समय हम कुआं नहीं खोद सकते, उस समय हमें पानी की जरूरत होती है। सो
जब मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया तो उस समय मैंने प्लानिंग किया कि मुझे साथ-साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मुझे फ्रीडम मिले, जिसमें मुझे इनकम की सिक्योरिटी मिले। मेरे बगल में एक शॉप हुआ करती थी, उस पर्सन को कैंसर हो गया दोस्तों, जो मेरा कॉम्पिटिटर था, और मेरी आंखों के सामने उसका जो परिवार है वो सड़क पे आ गया। तो उन दिनों मैं सोचा करता था कि आजाद एक चीज बता कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है और उसमें तू भी हो सकता है। तो तेरे पास ऐसी इनकम की कौन सी सिक्योरिटी है? जब जब तू दुकान पे जाता है, जब जब तू शॉप खोलता है, तब तब तेरे पास पैसा आता है। अगर तू शॉप पे जाना बंद कर देगा, अगर तुझे कुछ हो जाए तो तेरी शॉप कौन खोलेगा? ऐसे कुछ चैलेंजेस थे जिसकी वजह से मैं ढूंढा करता था कि कुछ ना कुछ मुझे मिले जिससे मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ सके। अदरवाइज पैसा मैं वहां से कमा रहा था लेकिन लाइफस्टाइल नहीं था। तो देखने वाला मुझे बाहर से ऐसे लगते थे, लोग आते थे कहते यार बड़ी क्या बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहा है यार ये पर्सन, इसका कितनी सेल है, इतना क्राउड रहता है। लेकिन अंदर मेरे क्या चल रहा है ये मुझे मालूम था। तो सबसे पहला लेसन मुझे यहाँ से एक मिला सीखने को कि दोस्तों हम कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करें। हम कई बार किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम किसी मॉल में जाते हैं, हमें लगता है कि यार ये पर्सन बड़ा ठीक है, इसको प्लान देने की जरूरत नहीं है, इससे मिलने की जरूरत नहीं है। नो, उसके अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता, उसके ऊपर क्या कर्जा चढ़ा हुआ है आपको नहीं पता। हो सकता है कि वो इतना भूखा हो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए कि वो उसे फट से ग्रैब कर ले। सो पहली चीज ये कि जो मेरी अपलाइन है मिस्टर सुमित सूद, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, इसमें मेरी एंट्री का भी एक मैं आपको जरूर बात बताऊंगा। मैं उनके साथ कहीं जा रहा था, वो बेसिकली फिल्म लाइन से हैं, मुंबई में वो काफ़ी अक्सर आते-जाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे मैं उनके साथ कहीं जा रहा था उनकी गाड़ी में, तो हुआ क्या कि उनकी गाड़ी में ना एक मैगज़ीन पड़ी हुई थी फॉरएवर की, जो हमें मंथली आती है। तो मैं बैठा हुआ था, ड्राइव वो कर रहे थे, तो मैंने मैगज़ीन उलट-पलट के देखी। मैंने कहा यार ये मैगज़ीन बहुत बढ़िया है, इसमें फोटोग्राफ्स हैं, सक्सेस कुछ लीडर्स की कुछ वो दिखा रखी थी, स्टोरीज़ थी, कुछ प्रोडक्ट्स का कुछ फोटोग्राफ्स था। तो मैंने कहा सुमित जी ये क्या चीज़ है? वो कहते हैं यार ये कंपनी है फॉरएवर लिविंग, क्योंकि वो यूज़र थे। बिज़नेस नहीं कर रहे थे वो। मैंने कहा लेकिन है क्या चीज़? कहते हैं एलोवेरा आता है इनका। तो मैंने कहा वो है क्या चीज़? एलोवेरा होती क्या चीज़ है? मुझे नहीं मालूम था। तो कहने लगे हाँ यार ऐसे जूस होता है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कॉस्टली बड़ा है यार। उन दिनों उनकी वर्डिंग मुझे आज भी याद है, कहते कॉस्टली बड़ा है। अब उन्होंने कहा कॉस्टली बड़ा, और मेरी यहाँ से ईगो हर्ट हो गई। मैंने कहा यार कॉस्टली कितना, कितना कॉस्टली है? कोई 50,000 की थोड़ी बॉटल होगी। तो कहने लगे नहीं, नहीं, नहीं यार आप छोड़ो इसको। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, क्या है, क्या चीज़ है ये तो बता दो। कहते यार इससे डाइजेस्टिव सिस्टम सेट आता है ये वो। तो मैंने कहा इसमें क्या, आप क्या कैसे करते हो इसको? क्या मतलब आपने इसका क्या बिज़नेस किया हुआ है, क्या है? कहते नहीं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइनिंग है, तो कोई भी कर सकता है। मैंने कहा यार चलो दिखाओ क्या चीज़ है ये। तो हम एक होटल में बैठे, तो इन्होंने मुझे वहाँ पे इसके बारे में बताया थोड़ा बहुत, जितनी इनको नॉलेज थी उन दिनों। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो क्या जॉइनिंग हो? कहते फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइनिंग है। मैंने कहा चलो ठीक है कर दो, भर दो। मैंने कहा क्योंकि सुन रखा था मैंने, सन 2000 में ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लग चुका था। एक ऐसी कंपनी इंडिया में आई थी जो काफ़ी सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल किया करती थी। लेकिन मैंने कहा चलो ये देखते हैं है क्या? तो उन्होंने फॉर्म फिल अप कर दिया। सर्च मैं कर ही रहा था कुछ ना कुछ कि यार कुछ और किया जाए। तो मुझे लगा कि यार नेक्स्ट डे संडे था और मैं ऑफिस पहुँच गया इसके फॉरएवर के। खुद ही पहुँचा मैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एड्रेस बताया था, और दोस्तों मैंने वहाँ पे जाके द प्रोडक्ट और इसकी जो प्लांट टू प्रोडक्ट जो सीडी है वो लगी हुई थी, और मैंने इसका मार्केटिंग प्लान देखा वहाँ पे जो बताया गया। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, उस रात मैं सो नहीं पाया, बाय गॉड बोल रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरे पास बिसलेरी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उसका मैंने 5 लाख रुपए सिक्योरिटी दे रखा है, और यहाँ पे इस कंपनी की इतनी बड़ी टर्नओवर है, इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ अच्छा है, सेटअप है, और ये कंपनी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। क्योंकि मैं एकदम से रिलेट कर गया बिसलेरी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ और फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ। तो मुझे रात भर मैं सोचता रहा, रात को मैं लगभग कोई 1-2 बजे मेरी आँख खुल गई, और मुझे ये लगे कि यार ये तो बड़ा आसान काम है। मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैंने कहा लोगों की तो मैं भरमार लगा दूँगा। मैंने कहा यार ऐसे तो, लेकिन इसको तो जल्दी से करना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं पीछे छूट जाऊँ, बहुत सारे लोग तो इसमें जुड़ते चले जाएँगे क्योंकि इसमें तो है ही कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह उठा मैं, और मेरे ना एक दोस्त हैं, एक क्लास फेलो थे, तो मैं उनके पास चला गया पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने कहा यार ऐसे-ऐसे मैंने बिज़नेस देखा है और हम इसको करेंगे, ये है, वो है, यहाँ पे लोग पैसा बना रहे हैं, ब्ला-ब्ला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं पता नहीं कौन से ग्रह से आया हूँ। मैंने कहा यार क्या बात, तू एक्साइटेड नहीं हुआ? कहता है तुझे हुआ क्या है, सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट करके आया, चाय-वाय पी है कि नहीं पी है? मैंने कहा क्यों, करके आया हूँ, हुआ क्या है? कहता है यार बैठ जा आराम से, ये काम नहीं चला करते। तो मैंने कहा यार जवाब मिल गया, मुझे आंसर मिल गया। मैंने कहा दोस्त आज़ाद सिंह ठाकुर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर कोई सक्सेस नहीं होगा, हर कोई यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। तो ये आंसर मुझे उसी समय मिल गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच,
तुम नहीं सुनना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। आज की तारीख में वो टीचर है, स्कूल टीचर है, मुझे मिलता है और वो मेरा फर्स्ट में लेके गया था दोस्तों। देखो सीखने को और मिली कि आपके बहुत सारे ऐसे अपने लोग होंगे जो आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। आपके पास ऐसे लोग आएँगे जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करेंगे जिनको आप जानते भी नहीं हो। खैर, मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा देखी जाएगी, मैं तो करूँगा और नेक्स्ट डे उस दिन मैं पहले दिन मैं मीटिंग करके गया था, अटेंड करके आया और नेक्स्ट डे मैंने क्या किया जी, मैं ऑफिस गया और वहाँ से मैंने 2 सीसी का प्रोडक्ट उठाया और एक पर्सन मेरा बगल में और शॉपकीपर था, उसका बेकरी का शॉप था, उसको भी मैं साथ लेके गया और उसका भी 2 सीसी का बिज़नेस उसी दिन डन करवा दिया और यानी कि मेरा जो स्टार्टअप हुआ, वो सीधा 4 सीसी से हुआ। तो पहले ही महीने मैंने 7.888 ट्रिपल 8 का बिज़नेस मैंने किया, 7.888 का। तो इस तरह से मेरे बिज़नेस की शुरुआत हुई और ये सफ़र मेरा बढ़ने शुरू हो गया। अभी आप देखिए कि जब मैंने जॉइन किया सन 2005 में, 5 जुलाई 2005 की मेरी जॉइनिंग है दोस्तों। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलता हूँ क्योंकि ये वो दिन है जब मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आया था। मैं टोटली इस जगह से बिल्कुल यू टर्न की तरफ मुड़ गया था। टोटली मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आना था जो मैं परमात्मा का थैंक्स करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में फॉरएवर आया। अभी जब करना शुरू किया दोस्तों, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता लगा कि यहाँ के चैलेंजेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले हमें चैलेंज तो आते ही आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम जब भी, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका अपना कुछ काम है, अपना जो बिज़नेस है, हर जगह पे आपको चैलेंजेस आते हैं। लेकिन मैंने देखिए पता नहीं क्या बाय गॉड ग्रेस ये लेके चलिए कि मुझे मैं ऐसी फीलिंग लेता हूँ कि जब भी मेरे को कोई चैलेंज आता है तो मैं किसी से डिस्कस कम करता हूँ, मैं अपने आप से काउंसलिंग ज़्यादा करता हूँ। खुद से काउंसलिंग करता हूँ और खुद से काउंसलिंग करते-करते मैं उस चैलेंज से डिस्कस करता हुआ बाहर निकल जाता हूँ। तो दोस्तों जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, तो इसमें मुझे 2 तरह के चैलेंज आए। एक चैलेंज था जो इंटरनली था और एक चैलेंज था जो एक्सटर्नली था। तो 2 तरह के चैलेंज आपको हर जगह पे मिलेंगे। इंटरनली चैलेंज जो होते हैं ना, दोस्तों वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सच बता रहा हूँ आपको। इन इंटरनली चैलेंजेस की वजह से ही जो कि आदमी किसी से डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसके चल रहे होते हैं। जैसे अभी आपने सुशांत राजपूत को सुना कि उसने सुसाइड कर लिया। इवन देन इंटरनली चैलेंजेस की वजह से ही ऐसे स्टेप लोग ले लिया करते हैं जो कि ज़िंदगी में नहीं लेने चाहिए। लेकिन हम इस बिज़नेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें भी इसी तरह के इंटरनल चैलेंजेस आते हैं और लोग हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आज मैं आप में से बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे या सुपरवाइजर्स होंगे, उनको मैं ऐसी होप दूँगा कि जिसकी वजह से उनको पता लगेगा कि ये इंटरनली चैलेंजेस जो हैं, इसको आप किस तरह से ओवरकम करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि जब हम इस बिज़नेस में एंटर करते हैं, तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अंदर आते हैं और जब हम घर जाते हैं, घर वालों को हमने बताया नहीं होता, तो चैलेंज तो वहीं से शुरू हो जाता है। घर वाले बोल देते हैं सीधा, "हाँ जी, ये क्या लेके आए? ये कौन-सी बॉटल है ये? कितने की लेके आए? क्यों लेके आए?" चैलेंज वहीं से शुरू हो गया। अंदर ही अंदर वो चैलेंज पकना शुरू हो जाता है। घर में आके बीवी बोलती है, "ये क्या बॉटल ले आए? मैं तो नहीं पीऊँगी इसको।" है ना? या वाइफ लेके आ गई तो हस्बैंड बोलता है, "तुम तो भोली-भाली हो, तुम्हें तो कोई भी कुछ चीज़ चिपका देता है, तुम पता नहीं किस काम में घुस गए, 24 घंटे देखो तो मीटिंग करते रहते हो।" तो ये चैलेंजेस जो हैं ये अंदर के अंदर चलने शुरू हो जाते हैं और फिर होता क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो अभी बिज़नेस शुरू करता है, उसको ये लगता है कि यार ये मेरे से काम होगा या नहीं होगा? मेरे से ये बॉटल बिकेगी या नहीं बिकेगी? क्या मैं ऐसे लोगों को स्पॉन्सर कर पाऊँगा जिनको इस बिज़नेस की ज़रूरत है या नहीं हो पाएगी? ये उसके अंदर चल रहे होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन इंटरनली चैलेंजेस को बाहर नहीं निकालते और होता क्या है कि 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद या 2 महीने के बाद वो हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। आई थिंक आपके साथ भी ऐसा होता होगा। हर किसी के साथ ये होता है। क्योंकि जो इंटरनली चैलेंजेस है ना, इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो इंटरनली चैलेंजेस हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। एक्सटर्नली चैलेंजेस तो आप उनको दिखा देंगे कि इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि वो बताता नहीं है आपसे, वो शेयर नहीं करता है आपसे, है ना? कि इसका वो अंदर-अंदर घुट रहा होता है। और इसका उसको एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है कि छोड़ो यार अब इसका फ़ोन उठाना ही बंद कर दो। मीटिंग में बुला रहा है इसको, मीटिंग में भी इसका बायकॉट कर दो, है ना? तो क्योंकि यहाँ पे पैसा लगा नहीं होता, बहुत सारा पैसा तो लगाया ही नहीं है, तो इसमें से एग्ज़िट करना उसके लिए बड़ा ही ईज़ी होता है।
मैंने इसमें से इसको कैसे ओवरकम किया, क्योंकि सेम टू सेम ह्यूमंस हैं, हम सब लोग इंसान हैं, तो चैलेंजेस तो हर किसी को सेम टू सेम आते हैं, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप से काउंसलिंग की कि इनमें से कैसे बाहर निकलना। मैंने एक ही काम करना शुरू कर दिया कि जो मेरी ऊपर एक्टिव अपलाइन थी, मैंने उसके साथ काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। मेरे ऊपर मिस्टर सुमित सूद थे, वो तो बिजनेस में थे ही नहीं। वो तो कम से कम 4-5 साल के बाद इस बिजनेस में है। ये भी यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर जो हमारी जो इंस्टेंट अपलाइन है वो अगर हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब हम सक्सेस नहीं हो सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप बिना अपलाइन के सपोर्ट के भी सक्सेस हो सकते हैं, बशर्ते कि आपके ऊपर जो एक्टिव अपलाइन है आप उसके साथ संपर्क बना के रखें। कई बार होता क्या है कि हम ये होप लगा के बैठ जाते हैं कि जो मेरी इंस्टेंट अपलाइन है, जिसने मुझे स्पॉन्सर किया है, वो ही मेरी उंगली पकड़ के मुझे आगे लेके जाए। नो, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बिजनेस मेरा था, क्योंकि ये बिजनेस मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप जो है वो मुझे लेनी थी, क्योंकि ये ओनरशिप का जो बिजनेस है ये मैं पहले कर ही रहा था। मेरे पास बिस्लरी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, मेरे पास अपनी शॉप्स थी, वहां पर मैं ओनर था। तो वो जो भावना थी, वो जो स्ट्रेंथ थी, वो मेरी पावर थी। तो ओनरशिप मैंने इस बिजनेस की इमीडिएट आते सार ही ले ली। और मैंने क्या किया, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि शुरू में जब मैं किसी से बात करता था तो सेम टू सेम चैलेंज मेरे साथ भी आ रहे थे, तो इनको ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। रेगुलर बेसिस पे इमीडिएट कॉल अपलाइन। मैं अपलाइन का दिमाग खा जाता था, यानी कि मैं पूछता था सर इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है, और वो कहते थे कि यार तू मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दे। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, मुझे जैसे गाइड किया गया मैं उसको मानता चला गया। जैसे उन्होंने कहा कि ऑफिस जाओ, मीटिंग अटेंड करो, एक बार बोला उन्होंने, दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कोई भी मीटिंग दोस्तों नहीं छोड़ी जो मैंने अटेंड ना की। एक-एक मीटिंग को मैंने 25-25, 50-50 बार अटेंड किया, और मेरे पास आज भी उसके नोट्स बने हुए हैं। जो भी मीटिंग में स्पीकर बोलता था, मैं उसको राइट डाउन करता जाता था, राइट डाउन करता जाता था, राइट डाउन करता जाता था। और जब मीटिंग खत्म हो जाया करती थी तो घर आके फिर मैं उसको देखता था कि यार उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। इससे क्या हुआ कि जो मेरे चैलेंजेस थे, इनर चैलेंजेस थे, वो मेरे धीरे-धीरे खत्म होने शुरू हो गए। उनसे मैं फाइट करता हुआ बाहर निकलने लग गया। इस तरह से अपने बिलीफ सिस्टम को मैंने स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिलीफ का बिजनेस है। सच बता रहा हूं आपको, जब भी आप किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे, आपको क्या करना है, उसका बिलीफ बढ़ाना है। किसके प्रति? नंबर 1 कंपनी के प्रति, कि कंपनी इज द बेस्ट, फॉरएवर इज द बेस्ट। फॉरएवर क्यों बेस्ट है, उसके फीचर्स आप उसको बताइए कि 15 से कभी 16 तारीख नहीं होती है, 10 करोड़ का चेक भी होता है तो वो आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर होता है ना? उसका बिलीफ बढ़ाना अपने कंपनी के प्रति, कंपनी की प्रोफाइल के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रति। कभी सेलिंग के पीछे मत दौड़िए। दूसरा बिलीफ आपने बढ़ाना है अपने प्रति, यानी कि अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर किया है तो मुझे उसका बिलीफ अपने प्रति बढ़ाना है कि दोस्त, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा हूं, चिंता मत कर, हम दोनों मिलके पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे। अगर ये श्योरेंस आपने उस पर्सन को दे दी, तो तीसरा बिलीफ उसका बढ़ाना है उसके प्रति कि दोस्त तू कर सकता है, यहाँ पे तू कर सकता है, जब दुनिया कर गई तो तू भी कर सकता है। अब जब उसका ये बिलीफ बढ़ गया, तो वो इंटरनली चैलेंजेस आपके साथ शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, आप उसका बिलीफ बढ़ा रहे हो। तब होता क्या है कि वो पर्सन जब 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक वो फिर इस चीज में से बाहर निकल आता है। तो इंटरनली जो चैलेंजेस थे, उसको हम बिलीफ सिस्टम को हाई करके उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सटर्नली चैलेंजेस। ये तो हो गए अंदर के चैलेंज, लेकिन इसके साथ साथ आपको शुरुआती दौर में एक्सटर्नल चैलेंजेस आएंगे, उसमें अलग तरह के होंगे। जैसे आप अगर नए-नए जुड़ते हैं तो आपको प्रोडक्ट यूज करना बहुत भारी फील होता है। यार ये बॉटल बहुत महँगी लग रही है, ये पेस्ट मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, तो हम उसको खोलते समय थोड़ा सोचने लगते हैं। ये एक्सटर्नली चैलेंजेस है। और इसके साथ-साथ और क्या है, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, मोबाइल का खर्चा बढ़ जाएगा, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, आने-जाने का खर्चा बढ़ जाएगा, है ना? जो उस समय मेरे साथ होता था। आज की डेट में तो हम घरों से काम कर रहे हैं। आज की डेट में तो ये खर्चे भी सब बंद हो गए। तो ये सब एक्सटर्नली चैलेंजेस है। इसके अलावा आपका मज़ाक उड़ाया जाता है, कई बार मेरा मज़ाक बहुत बार उड़ाया है। मुझे लोग एलोवेरा के नाम से बोलने लग गए थे कि वो देखो आज़ाद आ गया, एलोवेरा की बात करेगा, है ना? तो इस तरह के ये एक्सटर्नली चैलेंजेस हैं। जो कि आपको बार-बार परेशान करेंगे, बार-बार परेशान करेंगे, बार-बार परेशान करेंगे।
और बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिनको आप अपने साथ जोड़ लोगे और वो क्विट कर जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे, वो किसी और कंपनी में घुस जाएंगे। तो ये लेके चलिए कि हर व्यापार में इस तरह से होता है, लेकिन हम इस बिजनेस में जब हमारे साथ ऐसा होना लगता है ना, तो फिर हम कई बार घबरा जाते हैं। तो इससे घबराना नहीं है। मेरे साथ पता नहीं कितने लोग आए और कितने चले गए, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। नए पत्ते निकलते हैं, पुराने पत्ते कई बार झड़ जाते हैं, झड़ने दो दोस्त, डरना नहीं है इस चीज से। अपने आप को आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं। आपकी लाइफ में ये बिजनेस दोस्तों बाय एक्सीडेंटल नहीं आया, एक्सीडेंटल आ सकता है, लेकिन इसको अब आगे सक्सेस पाने के लिए आपको एक्सीडेंटल नहीं होगा, वहां पर आपको वर्क करना है। अभी आप देखिए जो एक्सटर्नली जो चैलेंजेस हैं, इनमें से निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बिलीफ को और स्ट्रांग करना है। आपने ऐसे-ऐसे लोगों के संपर्क में रहना है, जो लोग सक्सेस हो चुके हैं, जिन्होंने इन चैलेंजेस को किस तरह से हैंडल किया। आप देखिए कि मेरे पास एक टूथपेस्ट का ऑर्डर आया और यहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर दूर देना था मुझे वो। अब आप देखिए कि 20 किलोमीटर दूर जाके वो पेस्ट को मैं देने जाऊं तो मेरा खर्चा कितना होगा उस पे। दिमाग चलना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन मैं सिस्टम पे बिलीव करता था। मुझे इतना पता था कि ये एक पेस्ट की बात नहीं है। जब मेरी टीम में मेरे जैसे हजारों लोग होंगे और एक एक पेस्ट वो देने जाएंगे तो कितने हजारों पेस्ट मूव हो जाएंगे। और दोस्तों मैं एक पेस्ट देने गया, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब पेस्ट दिया तो वहां से मैं 14,000 रुपए का और ऑर्डर उठा के लाया, क्योंकि वहां पे बैठे थोड़ा उनके साथ रिलेशन बन जाता है, उनके हस्बैंड आ गए, वो कहते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से मूव होने शुरू हो जाती हैं चीजें। लेकिन इन चैलेंजेस को भी आप धीरे धीरे ओवरकम करते चले जाएंगे। आप देखिए कि अगर हम बॉटल यूज करते हैं एलोवेरा की, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, क्योंकि जब आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, आपके पास इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो आपकी बॉटल तो फ्री हो जाती है ना? जितने भी आपके खर्चे हुए होते हैं मैनेजर बनने तक, जैसे ही आप मैनेजर बनते हो, आपके 1-2 चेक में ही सारे के सारे खर्चे जो किए होते हैं, सारे के सारे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये विजनरी बनना पड़ता है इसमें। मैं विजनरी बना उस समय। मैंने कहा दोस्त घबरा मत, अपने आप से काउंसलिंग की। आजाद डर मत, चिंता मत कर, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, 4 बॉटल ज्यादा यूज कर लेगा, कर। जैसे मुझे अपलाइन ने बोला मैंने किया, पेस्ट यूज कर, एमपीडी यूज किया, हर चीज मैंने यूज करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो फिर आपका चेहरा सामने वाले के सामने जब जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ आप जब बात करते हो, दिल की बात फिर दिल तक जाती है। सामने वाला फिर आपको बोलता है यस यार, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मैं इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहता हूं, मुझे ये बताइए। राइट? तो इस तरह से हमने इन सब चैलेंजेस में से बाहर निकलना है दोस्तों। अब जब इन चैलेंजेस में से बाहर निकला, तो धीरे धीरे सक्सेस मिलनी शुरू हो गई। अब मैं देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहले महीने 7.888 सीसी का बिजनेस था। सेकंड मंथ में मैं सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया। थर्ड मंथ में मेरा असिस्टेंट मैनेजरशिप क्वालिफाई हो गया। फोर्थ मंथ में मैंने मैनेजर निकलना था, लेकिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि मेरे टीम में एक ऐसा पर्सन आया, उसको ये लगा कि ये मेरी वजह से मैनेजर निकल रहा है। उसने उस महीने मेरे साथ धोखा कर दिया और जितनी सेल थी उसने फादर के नाम से एक जगह पे और कोड लगा के मेरा मैनेजरशिप डिस्टर्ब हो गया। यानी कि मैं चौथे महीने में मैनेजर नहीं बन पाया। बड़ा मूड खराब हुआ मेरा, बड़ा दिल टूटा मेरा। मैंने कहा यार क्या करूं बताओ, है ना? माथे पे कुछ, चेहरे पे कुछ, तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने आप से एक चीज ठान ली कि आजाद अब तो करके ही दिखाना है। अब तो जरूर करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैं मैनेजर बनने के बाद थोड़ा स्लो रहता, लेकिन मैंने कहा दोस्त अब तो तेरे को जरूर करके दिखाऊंगा। कि तू क्या समझता है कि अगर तेरी वजह से मैं इस बिजनेस में हूं? नो। और दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया, करता गया और फिर मैं मैनेजर बना। और मैनेजर जब बनता है ना इंसान, तो बहुत मजा आता है। फिर ये मेरी अचीवमेंट्स आनी शुरू हो गई। अभी मैं आपको अपनी अचीवमेंट दिखाता हूँ। ये देखिए, सन 2005 जुलाई में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और सन 2006 अगस्त में मैं 1 साल के बाद इसमें मैनेजर क्वालिफाई हो गया। और दोस्तों ऐसा मैनेजर नहीं क्वालिफाई हुआ जिसमें बोला जाता है कि ये टेम्परेरी मैनेजर। नो, सॉलिड मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए 120 सीसी चाहिए होते हैं, लेकिन मैंने 128 सीसी से मैनेजरशिप क्वालिफाई किया था। असिस्टेंट मैनेजरशिप 75 सीसी से होता है, मेरा 80 सीसी से असिस्टेंट मैनेजरशिप निकला था। मेरे पास घर में एक भी प्रोडक्ट नहीं था उन दिनों, सच बता रहा हूं आपको। मैं इतना जुनून के साथ मैंने काम किया, मुझे पता ही नहीं होता था, मेरे अंदर इतना जोश, इतना जुनून होता था, क्योंकि मुझे दिखाई दे रही थी मुझे सक्सेस। मुझे वो फ्रीडम दिखाई दे रही थी जो मुझे मेरे अपने उस बिजनेस में दिखाई नहीं देती थी। तो इस तरह से आप देखिए, सन 2009 में
मैं सीनियर मैनेजर बना और एक ही महीने में मैंने 2 मैनेजर्स को ब्रेक किया। 1 मंथ में 2 मैनेजर्स, तो एक ही बारी में मैं सीनियर मैनेजर बन गया और 2015 में मैं सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई हुआ। और दोस्तों इसके साथ-साथ अचीवमेंट्स बढ़ती गई और मेरा जो मेरा फ़ियर था, वो भी मेरा दूर होने शुरू हो गया क्योंकि मैं बड़ा शाय किस्म का पर्सन था, सच बताऊँ आपको। मैं सिर्फ दुकान पे ही बैठ के बात कर सकता था, अदरवाइज़ यहाँ पे आके तो दोस्तों लाइफ़स्टाइल का पता लगा। मैंने ज़िंदगी में कभी स्टेज से स्पीच नहीं दी थी और मुझे मौका दिया फॉरएवर लिविंग ने। लगभग उन दिनों 1000-1200 लोग बैठे थे उसमें हॉल में और मुझे वहाँ पे होस्टिंग करने का मौका मिला। तो आप देख रहे हैं कि मैंने वहाँ से होस्टिंग की और मिस्टर अमरजीत सर ये हमें वहाँ उन्होंने स्टेज पे बुलाया, ऑनर किया। तो इस तरह से मेरा सफ़र जो है ये चलना शुरू हुआ दोस्तों और मैं सर्टिफाइड ट्रेनर बना फिर। मैंने यहाँ पे ट्रेनर बनने के बाद एक ही चीज़ की कि मैंने अपनी टीम में बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं वो अपनी टीम में क्रिएट किए क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। तो मैं क्वालिफाइड ट्रेनर बना कंपनी की तरफ से और यहाँ पे मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग सीखी और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप ट्रेनर बनते हो ना, तो आपकी ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग देने जाते हो तो सबसे पहले आप खुद को ग्रूम करके जाते हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सीख के जाते हो जिससे होता क्या है, बाय मिस्टेक आपकी ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाती है और आपकी सक्सेस जो है वो तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है। और मुझे टूर्स क्वालीफाई हो गए। यूएसए का मैं 3 बार टूर क्वालीफाई कर चुका हूँ और इसके साथ-साथ आप देखिए जब ये मेरे पास ये लेटर आया कि आप यूएस टूर क्वालीफाई कर चुके हैं, दोस्तों हड़कंप मच गया मार्केट में कि यार कमाल हो गई, आज़ाद सिंह ठाकुर कमाल है यार, यूएसए जा रहा है। तो इस तरह से ये सिर्फ सक्सेस का सिलसिला चलता चला गया और फिर मैं वियना गया, टॉप वहाँ पे वर्ल्ड रैली हुई थी। तो ये मेरा फर्स्ट यूरोप का टूर था उधर का, तो ये मुझे जाने का मौका मिला कंपनी की तरफ से। और इसके साथ-साथ ग्लोबल रैलीज़ मैंने बहुत सारी अटेंड की, जिसमें 1500 सीसी से प्लस जब आप चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर एन्जॉय करने के लिए मनी भी दी जाती है साथ में उसे आप एन्जॉय करते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे मेरे काफ़ी सारे और टूर्स थे लेकिन स्पेस कम था, तो मैंने ये थोड़े से आपको लगाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरा लंदन का टूर है सन 2014 का और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला सन 2016 में और आप देख रहे हैं इधर एक जगह और है दुबई का देख रहे हैं, पताया भी जाके आए हैं। तो इस तरह से ये टूर्स जो है ना, ये आने वाले टाइम में दोस्तों पीनट्स की तरह आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ आप देखिए, ये ग्लोबल रैलीज़ हमने एन्जॉय की, मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जो हमने इसे एन्जॉय किया। मेरी टीम में काफ़ी सारे लोग थे, जो क्वालीफाई करके वहाँ पे गए। तो यहाँ पे मिस्टर विकास देख रहे हैं, मिस्टर सुमित सूद जी हैं, मिस्टर नंदा जी बीच में हैं, टीपीएस बेदी जी हैं। तो इस तरह से हमने अपनी लाइफ़ को फॉरएवर के साथ एन्जॉय किया। दोस्तों यहाँ पे पैसा तो आता ही आता है, लेकिन जो लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करने को मिलता है ना, उसका तो कोई भी जवाब ही नहीं है। लेकिन मिलेगा उसको जो उन चैलेंजेस में से बाहर निकल के बाहर निकलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो वहीं पे रास्ते में क्विट कर जाते हैं, लेकिन जो क्विट कर जाते हैं दोस्तों उनको ये चीज़ें नहीं मिलती। मुझे लंदन जाने का मौका मिला था, ये देखिए बहुत बड़ा स्टेडियम था और यहाँ पे मिस्टर रैक्स जो है ये ऊपर ऊपर से किसी उसमें बास्केट में थे और उसमें से नीचे उतरे, बड़ा ही गजब का ये सीन था। और इसके साथ-साथ आप देखिए इंटरनेशनल टूर्स मलेशिया जाने का मौका मिला, हांगकांग, मकाऊ फिर आपका सिंगापुर, तो ये सभी के सभी टूर्स यहाँ पे मैंने अचीव किए और इसके साथ-साथ फिर मुझे ईगल मैनेजर बनने का मौका मिला। तो ये देख सकते हैं आप ईगल मैनेजर मैं और मेरी मिसेज़ का ये हमें मिला था ये और डोमेस्टिक टूर्स मैंने यहाँ पे लगभग 11-12 बार मैं इसे एन्जॉय कर चुका हूँ। बड़ा गज़ब का टूर होता है दोस्तों, इतना एन्जॉय होता है इस टूर में कि जिसे हम भूल नहीं सकते। फ्री ऑफ कॉस्ट आना-जाना, रहना-सहना, खाना-पीना सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। मैं जब पहली बार गया था ना, तो बाय गॉड बोल रहा हूँ कि मज़ा आ गया था। मैं आपको बताऊँ कि मैं शॉपकीपर पर्सन कभी प्लेन में बैठा नहीं, कभी जहाज का सफ़र किया नहीं और मुझे जब फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठने का मौका मिला तो बाय गॉड मतलब ये लेके चलिए कि टॉप टू बॉटम कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ की हमने फोटोग्राफ्स ना ली हो। इवन दैट टॉयलेट तक के भी फोटो खींच के ले आए थे कि यार प्लेन का जो है कैसा ये वॉशरूम कैसा होता होगा, है ना? तो इतनी एक्साइटमेंट जो है फर्स्ट टाइम में थी हमारे अंदर। तो इस तरह से ये सफर हमारा चलता गया और जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं हमें ये हार डाले गए हैं, इतना इतना आनंद आता है, ऐसा हमारा स्वागत होता है, इतना वेलकम होता है, जैसे पता नहीं हमने कितनी बड़ी जंग जो है वो जीत के आए हों हम। इतना रिलैक्स वहाँ पे मिलता है हमें, इतना वेलकम किया जाता है, गिफ्ट मिलते हैं और मेरा तो एक ही पर्पज़ रहता था कि जब भी मैं डोमेस्टिक टूर में जाता था, तो वहाँ पर मुझे स्विमिंग का बड़ा शौक था, लेकिन स्विमिंग आती नहीं थी। आपको मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। तो हम स्विमिंग पूल में घुस गए, मैं था, विकास था साथ में और भी मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त थे।
तो साइमन जी भी बीच में थे, स्विमिंग, ये तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है। तो मैंने कहा यार साइमन सर से सीखते हैं कि किस तरह से स्विमिंग जो की जाती है। तो हमने कहा सर आप बताइए कि किस तरह से हमें सिखाइए। और रियली कह रहा हूँ, इन्होंने मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए। इन्होंने कहा कि पहले तो मुंडी को अंदर करो, सांस खींचो मुंडी अंदर, और मतलब जो चीजें उन्होंने बताई उसको हमने फॉलो किया, और करते 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 आज की तारीख में मैं रियली कह रहा हूँ, मैंने स्विमिंग पूल जो है स्विमिंग पूल में ही जो स्विमिंग जो है ये साइमन सर की वजह से सीखी। तो जब भी हम जाते थे तो इनसे हमने बहुत सारे टिप्स लेने, और इसी की वजह से हम सीख गए। तो देखिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर ये इतना इजीली हमें स्विमिंग करना सिखा सकते हैं, तो दोस्तों अगर ये इन करोड़ के चेक ले चुके हैं, तो यू ऑल आर लकी कि आपको ये इन करोड़ के चेक तो कैसे आते हैं। आप इनकी बातों को मानेंगे ना, आपके भी वैसे के वैसे सेम चेक आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इनसे स्विमिंग सीखी है। और मुझे अब मौका मिलेगा तो मैं इनसे पूछूंगा, सीखूंगा कि सर हम किस तरह से इन करोड़ के चेक तक पहुंचे, है ना। तो ये सब के सब चीजें तब मिलती हैं जब हम सबमिशन में हो, जब हम लीडर की बात सुनते हैं। ये सब चीजें हमें यहाँ पे एंजॉय करने को मिलती है दोस्तों। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे कार प्लान लेने का मौका मिला। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, और अभी मैंने कार प्लान दोबारा से अचीव किया है। तो 4 टाइम मैं यहाँ से कार प्लान ले चुका हूँ। और इसके साथ साथ आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये मेरी पहली कार गाड़ी थी। मेरे पास फिएट होती थी जब मैं शॉप पे था। ये जो फिएट है, मैंने सेकंड हैंड कार ली थी ये। और इसके बाद फिर मैंने एक मारुति परचेज की थी, जो कि इसके बाद की गाड़ी है, जो मैं अपने बिजनेस में था तब की बात बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही सन 2005 में फॉरएवर में आया, तो मेरा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। आप देखिए कि मेरी पहली कार इसमें से आई थी फॉरएवर की तरफ से। इसका नाम था इंडिका, इंडिका के नाम से थी, इंडिगो डाइकर के नाम से। इसमें डाइकर का इंजन था, स्पेशल इंजन था इनका आया था। तो ये बड़ा यूनिक गाड़ी थी उन दिनों। तो ये मैंने परचेज की थी। और उसके बाद सेकंड कार मैंने यहाँ से ली। आप देख रहे हैं एकदम से चेंज आ गया। तो ये गाड़ी बहुत मैंने चलाई, बहुत ड्राइव किया, इसको बहुत एंजॉय किया। और आज की तारीख में मैं अभी नई गाड़ी लेके आया हूँ। आज मैं ये बड़ी ही फर्स्ट क्लास ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। और ये सभी की सभी चीजें मुझे मिली फॉरएवर की बदौलत। सच बता रहा हूँ दोस्तों, कई बार सोचता हूँ कि अगर जिंदगी में फॉरएवर लिविंग ना होती तो जिंदगी कैसे होती, किस तरह की होती, किस तरह की लाइफ में एंजॉय कर रहा होता। उस लाइफ को जब मैं सोचता हूँ ना, तो डर लगता है कई बार। क्योंकि आज का जो दौर है, आज आप देखिए कि बड़े बड़े बिजनेसेस जो है डिस्टर्ब है। मेरी एक आज भी शॉप है, वहां पे सबसे छोटा ब्रदर बैठता है। तो आज मुझे मालूम है कि 2 महीने से वो शॉप पे नहीं जा पाया। आज उसका इतना मतलब परेशान है, इतना डिप्रेशन में है एक तरह से कि यार क्या बनेगा, किस तरह से खर्चे चलेंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी जॉब्स चली गई। लेकिन दोस्तों थैंक्स करता हूँ फॉरएवर का, जो आज भी हमारे साथ खड़ी हुई है। आप देखिए यहाँ पे मुझे जो पहला चेक आया, ये मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कोई भी पर्सन इसको चेक कर सकता है। सन 2005 को मैंने ज्वाइनिंग की थी, 7वां महीना था, जुलाई मंथ था, और 8th को यानी कि अगस्त में मुझे पहला चेक आया, 1906 रुपए 30 पैसे। बहुत बड़ा चेक है ना। अब मैंने इसको, उन दिनों हमारे पास ना ये ओरिजिनल चेक्स आया करते थे। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं रिकॉर्ड रख लिया करता हूँ। तो मैंने इसका ना फोटो कॉपी करवाने के लिए बगल की शॉप पे गया। मैंने कहा यार इसकी फोटो कॉपी निकाल दे, ये मैंने जो बिजनेस शुरू किया ना, पता तो लग ही जाता है लोगों को। तो मैंने कहा उसका मुझे पे आउट आया। तो उन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया, कहते ओहो 1,09,000 का चेक आ गया आजाद का, 1,00,000 आज की तो पार्टी आजाद की तरफ से है। जैसे कि होता है ना लोगों को, लोग ना आपको खींचते हैं, उनको वो बातों बातों में आपको खींचते हैं कि यार ये पर्सन सक्सेस ना हो जाए, है ना। 1906 रुपए का चेक उन्होंने 1,09,000 का चेक बना दिया और मजाक उड़ाने लग गए। 3 4 5 लोग इकट्ठे कर दिए दुकानदार, जैसे हैबिट होती है लोगों की। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, तो कॉपी कर, अगले महीने फिर आऊंगा। और दोस्तों आप चेक कर सकते हैं 8th मंथ, और अगले महीने फिर से चेक आया। ये था 4,939 रुपए का। मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा यार फोटो कॉपी निकाल दे। तीसरे महीने फिर चेक आया, 10वां महीना आप देख रहे हैं, 10,342 रुपए का। मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा दोस्त अभी ठहर जा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर उसके पास गया, 13,710 रुपए का चेक। और उससे अगले महीने मैं फिर उसके पास गया, 25,000 रुपए का चेक। दोस्तों कौन कहता है कि फॉरएवर लिविंग में इंस्टेंट इनकम नहीं है। ये मैं सिर्फ वो पेमेंट दिखा रहा हूं जो मुझे कंपनी की तरफ से आई, जो मैंने रिटेल प्रॉफिट कमाया, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। अभी आप एक चीज देखिए,
25,000 रुपए तक पहुंचना, यानी कि 4-5 महीने में मैं 25,000 तक पहुंच गया। एक चीज बताइए, इतना इंक्रीमेंट कौन सी जॉब में लगता है? कोई जरा मुझे बता सकता हो? कौन सा ऐसा जॉब है या ऐसी कौन सा बिजनेस है जिसमें इतना जल्दी जल्दी से जंप लगता है? और दोस्तों, जब मैं 1 साल के बाद मैनेजर बना, तो मैं सॉलिड मैनेजर बना, ऐसा मैनेजर नहीं बना। और आप देखिए हुआ क्या, मैनेजर बनने के बाद मेरा चेक आया 63,608 रुपए 9 पैसे, 64,482 पैसे, 64,463 पैसे। कंटिन्यू चेक्स आप चेक कर सकते हैं। ये चीज दिखाता है चेक, बात चेक की नहीं है, बात इन आप इसकी कंसिस्टेंसी को देखिए कि किस तरह से बिजनेस जो है वो स्टेबल चलता चला गया। और दोस्तों, मेरे चेक्स जो है ना, मैं चेक्स के पीछे नहीं दौड़ता हूं, मैं हमेशा सिस्टम के पीछे दौड़ता हूं, मैं लोगों को डेवलप करने के पीछे दौड़ता हूं। इनकम तो ऑटो मोड पे आएगी, हमें जरूरत नहीं है पैसे की तरफ देखने की। चेक्स जो है फिर 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख। बात यह है कि वो आपके लगातार चलते रहने चाहिए, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम एक ऐसी चीज है, जब हम काम नहीं भी कर रहे होते तब भी सिस्टम काम कर रहा होता है, तो इसकी ये पावर रहती है। अभी आप देखिए रेगुलर इनकम, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कोरोना के टाइम की, आप देख सकते हैं 2,26,000 रुपया, 2,28,000 रुपया। जब लोग कह रहे थे कि आज हम घर से निकल नहीं सकते हैं, दोस्तों, फॉरएवर लिविंग ने मुझे 3,51,000 रुपया भेजा कि इससे तुम अपना दाल फुल्का बड़े आराम से खा सकते हो। ये बताइए कि कौन सी कंपनी है, कौन सा व्यापार है जो अप्रैल महीने में भी आपको 3 लाख रुपए का चेक देके गया? दोस्तों, दिस इज कॉल्ड फॉरएवर लिविंग। ये वो बिजनेस है जहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं आप। टोटल इनकम की बात करूं तो मैं लगभग यहाँ से 5 से 5.5 करोड़ रुपया अभी तक अर्न कर चुका हूं टोटल। और इससे मैंने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो मैं आगे रेंट पे दिया है, वहां से मुझे अलग से इनकम आती है, रॉयल्टी इनकम जिसको हम बोल सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम यहाँ से जो चाहे वो निकाल सकते हैं। ये वो बिजनेस है दोस्तों, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई साबुन तेल बेचने वाली कंपनी नहीं है। ये वो कंपनी है जो किसी का भी सपने को पूरा कर सकती है। चेयरमैन बोनस की बात करते हैं, ये तो मैंने आपको रेगुलर इनकम दिखाई। आप देखिए, मैंने यहाँ से 4 बार चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। आप देखिए 7,49,000, 6 लाख और 2,56,000, 5,95,000। बात इसकी नहीं है, बात ये है कि आप यहाँ पे जाते हो, आप क्या फीलिंग लेते हो, वाओ क्या बात है, अल्टीमेट। वहां पर हजारों लोगों के सामने आपको स्टेज पे बुलाया जाता है और क्या एक्साइटमेंट होती है, क्या गजब का वहां पे माहौल होता है। मैं कहता हूं कि आप अगर एक बार वहां पे चले गए तो दोस्तों आप ये कहोगे कि वाकई क्या है फॉरएवर, वहां पे जाके ही आपको पता लगता है। और मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, ये वो इनकम है जिसे कोई भी ले सकता है, जिसपे आप सभी का अधिकार है। ये 3% वो पैसा है। मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में काम कर रहा हूँ, साइमन जी वहां पे मुंबई में काम कर रहे हैं, सुनील गुप्ता जी दिल्ली में काम कर रहे हैं, सूर्य सिन्हा जी कलकत्ता में काम कर रहे हैं। इतना भी काम हो रहा है, सबका 3% आप ले सकते हो। 3% में आपका भी राइट है। जो काम आपने नहीं किया वो पैसा भी आप यहाँ से ले सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। अदरवाइज अगर हम अपने बिजनेस में होते तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही किए हुए काम का पैसा ले सकते थे, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। अब आ जाती है बात कि व्हाट शुड आई डू, मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अब कामयाब हो सकूं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे सक्सेस होना है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, अब हमने कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि अभी तक नहीं किए या हो सकता है आप कर भी रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें एक दो चीजें ऐसी करनी है जो आज की नीड है, जिसको हम बोलते हैं चेंज। अगर हमने चेंज नहीं किया तो दोस्तों हम पिछड़ जाएंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सब लोगों ने एचएमटी के बारे में सुना होगा, घड़ी हुआ करती थी, बहुत अच्छी घड़ी बिका करती थी। या फिर आपने नोकिया फोन के बारे में तो जरूर सुना होगा, है ना, कितना बिका करता था नोकिया फोन। या फिर आपने एम्बेसडर गाड़ी के बारे में तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, आज मार्केट से वो साफ हो चुकी हैं। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको इंटरनली चेंज करना है, इंटरनली और एक्सटर्नली चेंज करना है। इंटरनली कैसी चीजें चेंज करनी है? इंटरनली सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारे अंदर एक चीज होती है जो हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं घमंड, ईगो। मुझे तुम सिखाओगे, मुझे तुम बताओगे, है ना। ये बहुत बार आता है क्योंकि हम नई फील्ड में आए हैं, हम ऐसी फील्ड में आए हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हम जिस फील्ड से आए होते हैं उसके हम मास्टर होते हैं। और वही ज्ञान हमारा हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वहां पर हम बहुत ज्यादा सीखे होते हैं और हम कहते हैं मुझे तुम क्या सिखाओगे, है ना। तो सबसे पहले इस ईगो को हमने खत्म करना है
और सबमिशन में आना है अपनी अपलाइन के। आपकी अपलाइन उम्र में आपसे छोटी हो सकती है, हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है अगर वो एक्टिवली काम कर रहा है। इस फील्ड का उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हमें उसकी सबमिशन में आना है। जो वो आपको गाइड कर रहा है उसको आपने फॉलो अप करना है। इंटरनली चैलेंज, ये इसको भी आपने दूर करना है। ये अंदर से हमें अपने आप को चेंज लेके आना है। दूसरी चीज क्या है, एक्सटर्नली हमें ऐसे बहुत सारी चीजों को अब अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं की थी। दोस्तों, आज मार्केट में चले जाइए, बहुत बड़े-बड़े बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप घर से बैठे हुए कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आपको इसको करने का ज्ञान हो, जब आप इसके ये सोशल मीडिया के फ्रेंडली हों। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अभी भी आना पसंद नहीं करते, या वो जाते हैं तो फेसबुक में घुस जाते हैं, यूट्यूब में घुस जाते हैं और घंटों-घंटों व्हाट्सएप में घुसे रहते हैं। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। अपने टाइम को किल मत कीजिए। ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक चीज है जिसमें हम अपनी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा पावरफुल टूल है। अगर आपने इसकी पावर को समझ लिया तो आप वो कर सकते हैं जो शायद आज तक हमने कभी नहीं किया है। सच बता रहा हूं आपको, आप घर से बैठे ही इस बिजनेस को इतने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा सिस्टम हो गया है। आप घर से बैठे ऑर्डर लगा सकते हैं, आप घर से ही किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी उसके डोर स्टेप पे सामान भेज रही है। आपका कितना अच्छा सिस्टम आपकी टीम ने बना रखा है। हमने करना क्या है, लोगों को कांटेक्ट करना है और उनको ऐसी मीटिंग्स में लाते रहना है, ऐसी मीटिंग में डालते रहना है। डालते रहिए, उसमें से कुछ लोग निकल के आएंगे और वो भी आपको फॉलो अप करना शुरू कर देंगे। तो डिजिटल जो सिस्टम है इसको आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं वो ईमेल नहीं कर पाते, सीखना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं मैं एंड्रॉइड फोन नहीं चला सकता हूं, मैं लैपटॉप पे फ्रेंडली नहीं हूं, तो सीखना पड़ेगा दोस्त। अगर नहीं सीखेंगे तो पिछड़ जाएंगे, सच बता रहा हूँ। कोई चॉइस नहीं है कि मैं इसके बिना अब आगे बढ़ सकता हूँ। नो, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा खर्च करते हुए डर रहे हैं कि मुझे वाईफाई लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ 2 जीबी से काम चला लूंगा। नो, यू आर अ लीडर। आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने आए हैं। आप 10 करोड़ का चेक ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रॉल्फ किक का चेक 10 करोड़ 60 लाख रुपए का था, है ना? तो इतना बड़ा अगर बिजनेस है तो हमें दिल भी बड़ा रखना पड़ेगा। हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, है ना? हमें अपनी सारी टीम को इकट्ठे लेके चलना पड़ेगा, तो हम सब लोग यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कम है और बातचीत तो करने का बहुत मन है आपके साथ, लेकिन फर्दर फिर कभी मौका मिलेगा। इस बार मैंने आपके साथ अपना जो स्टोरी शेयर किया है, अदरवाइज बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कभी उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूंगा और आप सबका बहुत-बहुत थैंक्स कि आपने मुझे सुना। और अगर किसी को मेरा शब्द कड़वा लगा हो तो मैं उससे सॉरी फील करूंगा, लेकिन क्या करूं। फॉरएवर लिविंग एक फैमिली है दोस्तों, ऐसी फैमिली है जिसमें हम सब लोग एक दूसरे को ग्रो करते हैं। आप देखिए कि हम कहाँ, मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, आप वहां पे हैं, लेकिन कितना अच्छा रिलेशन है, कितना क्लोज रिलेशन है कि एक बार बोलने पर भी, और मैं आपको दिल की सब बातें बता रहा हूँ। तो ये सब चीज वहीं पे यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये प्रोवाइड हो सकता है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच साइमन सर कि आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक। आप स्क्रीन या थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मेरे को याद आया कि आई रिमेम्बर आई टू टीच ऑन स्विमिंग। तो आपने जो स्विमिंग का टॉपिक निकाला ना, it was amazing. I still remember. Even I think Vikas was there. Yes, And yes, yes. Vikas is also a fantastic guy from Chandigarh. I think next Sunday we'll have him. Yes, yes. So I think your training was amazing. What I liked about your training, very frankly, you were very down to earth. वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल। और यू नो क्या होता है कि हमारा कंपनी में लोग बोलते हैं हम लोग बोल बच्चन कर रहे हैं, लेकिन हमारा हर सेमिनार में हम लोग प्रूफ दिखाते हैं। बाकी दूसरे कंपनी ऐसा बोल बच्चन नहीं करते, तो हम हर सेमिनार में बोल। तो लाइक टू थैंक्स यू लॉट, थैंक्स अ लॉट आजाद ठाकुर। थैंक यू वेरी मच। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज वाज अमेजिंग। गाइस वी लाइक टू थैंक आजाद अगेन। एंड आजाद, हम आपको वापस बुलाएंगे because I know you know a lot of topics, so we'll invite you again. Sure. I'm sure that you can do wonders there. So thanks a lot. Thanks for coming. God bless you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Say hi to all the Chandigarh distributors. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.